Good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. Hope last week जो हमने timing दिया था, the timings and everything has been probably worked for you very well, right? And if you look at last week, this is a weekly analysis that we are doing. Last week मैंने upper side capping कर दी थी, and मैंने लोगों को बोला था कि you can easily sell C, right? बीच में हमने एक P sell का positions लिया था. But that's okay. So the more importance was given towards selling C, right? और अगर हम daily chart में जाएंगे तो we would be very clear actually what we asked and one market gave us, right? So Monday हमने sell दिया था. Monday market second half में recover किया of course. Tuesday हमने green बोला था, right? Wednesday हमने sell on rise बोला था. Market last moment में fall भी किया. थर्सडे के लिए एस्ट्रो टाइमिंग में वी हैव गिवन मंडे एंड थर्सडे एज ब्लैक मंडे एंड ब्लैक थर्सडे. मंडे तो ज्यादा नहीं हुआ, थर्सडे इट वाज ए ब्यूटीफुल ब्लैक थर्सडे एंड फ्राइडे को मैंने बोला था बुल रन होगा. मार्केट वेंट इनटू ए बुल रन. अपर साइड कैपिंग हो गया बट इट वेंट इनटू ए बुल रन. एटलीस्ट इट रिकवर्ड इफ यू लुक एट ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स ऑन फ्राइडे, राइट? Okay, so the days has been good. The only thing that we could have made this money really big on a Thursday, which he could not do क्योंकि ये गैप डाउन बहुत ज्यादा हो गया था. अगर फ्लैट होके ओपन होता तो भी ये ब्लैक थर्सडे ही होता. बट एनीवे इंडेक्स में इट इज very especially option buyers, okay, and even option sellers if they are naked sellers. If you are hedged sellers, then it is fine. Otherwise index may you never know how much market will gap up and gap down, okay? So it's very difficult to take, but keep buying positions, okay? That is actually like gambling. So I don't do gambling on index. That is why we didn't do, but we made money. And Thursday Friday we're traveling, so we didn't do a lot of trade. We just did one trade, and I'll just show you that what are the trade, because we have not made any video for Thursday and Friday, but I have put it into the group, right? Thursday का अगर trade अगर लोगे तो this is the buying I have taken. I have shown you it in the screenshot in the group. And then I said I will go out of market because I was expecting a range bound market on Thursday. This last 45 minutes का fall is a blessing in disguise. जिसका होगा ये jackpot ही था, okay? So, but we didn't take. On a Friday मैंने clearly बोला था market bull run में रहेगा. I bought in the morning. And I यहाँ पे exactly यहाँ पे I told to I am cutting my buy positions, and इस level के ऊपर market गया ही नहीं. The entire day market was here. Okay, it was a good consolidating market here. Okay, and let us see how market is going to react. Okay, वो weekly video हम बनाते हैं. I mean we would just discuss. Before that, let me just give you guys the timing, so that you guys have it, right? So you can note the timing. I've already put it into the YouTube channel already. You can go ahead and check it. But the timing to us looks like Monday. It looks like a good sell still. Okay, at least 130 tak. After that also market might fall, but I don't see big fall. Even market can actually recover. That's my view is, okay. So 9:30 to 1:30 fall, 1:40 to 3 p.m. range bound gas pass market. 1st March is our NSE holiday. 2nd March 9:15 to 10:30 down. 12:45 to 10:45 to 12:15 we may see some green recovery, and 12:30 to 2:30 down again, and 2:45 to 2:30 range bound. That means if you look at Thursday is probably looking like a range bound candle. It might be red, but it would be a proper range bound candle. So you might see a expiry wala move on Wednesday rather than a Thursday, because Thursday my calculations are showing that market might do a bull run full day. Okay, बुल रन फुल डे में कभी कभी ये ऑप्शन होता है कि हमारे कैलकुलेशंस गलत चल जाते हैं और ये बुल रन की जगह बियर रन हो जाता है. ठीक है, whenever I say full day, right? Full day. So the rule everybody knows. I still think that Thursday would be a bull run. If the first 1 hour we are on the positive side, then everybody knows that Thursday we are going to go on a bull run. So we might not get an expiry wala move on Thursday. Okay, and Friday and the first half 9 to 11 we are positive, and 11 to 11:45 to 3:30 we have a sell off. So if you ask me personally,
the candle that I am looking, the way the candle looking, green candle and especially weekly candle. Okay. This I'm looking for a green candle ideally. Okay. And a doji candle. Okay. Something like this. This kind of candle I'm expecting this week. Okay. Last week मैंने आपको क्या बोला था? The downside is unlimited, right? And upper side is capped. This side, after Monday we will see, but मुझे ना अपर साइड में अनलिमिटेड लग रहा है ना डाउन साइड में अनलिमिटेड लग रहा है. What I'm telling you is, if it goes heavily on the downside on Monday, let us say, even if, okay, end closing by Thursday or Friday, the end closing will be on the side where it is opening. So you will see a doji candle. Exactly not doji. Let me delete this one. Okay. And then we'll recover. Okay, ठीक है, no problem. इसको ही delete कर देते हैं. Monday का everybody has taken the screenshot, right? Okay. Now what I'm saying, किस तरह के कैंडल बन सकता है मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ. What might be possible on a, this is a daily one ना, मैं weekly बताता हूँ आपको. Yeah, this kind of candle I was expecting. Okay, this candle or this kind of candle, okay, or even this kind of candle is okay. A green doji pin bar kind of candle I'm expecting on a weekly basis, not daily. Okay, weekly basis. That is what I'm expecting. Now, let us start with the weekly analysis quickly, and then we will go. This week we told that weekly we do not have any downside limitations. Market fail. Of course, Friday को recover किया. Thursday तक हमारी unlimited downside थी Thursday तक. That was the statement that we have made in the last weekly view. Okay. So this week I still think यहाँ पे एक लेवल है कि 34,100 जो ये डबल बॉटम के आसपास ही है. Okay. यहाँ पे एक लेवल आप ड्रॉ करके रख सकते हो. मैं दे देता हूँ इसको. 34,100 would be my downside limitation. ज्यादा से ज्यादा. I mean, even in that case also we are talking about a 2,500 point का, sorry, 2,300 point का fall, which I rarely doubt. That means what I'm saying, sell on rise हम कब तक है? Monday we are sell on rise. Okay, let me just write it out. So Monday sell on rise, मोटा मोटा कैंडल के हिसाब से. Wednesday sell on rise. Tuesday तो छुट्टी है. Thursday we have bull run. Okay, Friday first half buy, second half sell. सिंपल. ठीक है, इतना ही है मोटा मोटा व्यू. अगर ले ले टाइमिंग के हिसाब से, एस्ट्रो टाइमिंग के हिसाब से, इतना हमारा मोटा मोटा व्यू है. राइट. तो मुझे जो लगता है मार्केट जो रिएक्ट करने की कोशिश करेगा वो रिएक्ट इस लेवल के आसपास करेगा जो हमारा ब्लैक लेवल है. तो वीकली लेवल पहले आपको दे देता हूँ. वीकली डू डाई लेवल जो हमारा है वो 36,480 है, विच इज बेसिकली द फ्राइडेज का क्लोजिंग. ओके, दैट मींस इसके नीचे मार्केट सेल ऑन राइज है, इसके ऊपर मार्केट बाय ऑन डिप्स है. सिंपल. ये डू डाई लेवल है हमारा. ठीक है, 36,500 ले लो मोटा मोटा. मार्केट अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है couple of hours में 2 घंटा 3 घंटे के आसपास सस्टेन करता है on a higher level, then very very high chances के हम लोग एटलीस्ट 37,700 के आसपास आएंगे. वैसे लेवल 38,100 का है, बट 37,700, that means we are talking about a 1,300 पॉइंट का मूव एंड देन 38,100 यहाँ पे. ठीक है, बट ये सिनारियो मेरे को नहीं लग रहा है कि मार्केट में हो. However, do die level को respect देना है. This has helped us in our trading many times. So 36,500 का do die level है. डाउन साइड में हमारी जो एक सपोर्ट आती है पहली 34,930. ओके, सो दैट मीन्स 35,000 मोटा मोटा लेवल. एंड देन द सेकेंड लेवल आती है. मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ पे आएगा. अगर देखो मैंने यहाँ पे एक मेरी बाई जोन है, ये बाई जोन मेरा पहले भी होगा ये लेवल पे कहीं पे. ठीक है, 5 मिनट्स में मैं दिखाता हूँ, वहां मिलेगा.
मार्केट अगर ये लेवल आता है 33,370, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ए 3,000 पॉइंट का फॉल, व्हिच आई पर्सनली डोंट थिंक इट विल कम। मुझे ये भी नहीं लगता कि मार्केट 34,100 भी आएगा। ओके, डिपेंडिंग अपॉन वेडनेसडे का मूव, बट आई रियली रियली डाउट कि मार्केट यहाँ तक भी आएगा। ठीक है, तो मेरी एक पर्सनल जो रेंज रहती है ना, वो रेंज मेरी पर्सनल यहाँ से यहाँ तक है। ये जो लेवल है 34,900 का लेवल, 37,700 का लेवल, 2700 पॉइंट का रेंज है ये। ओके, 2,800 पॉइंट का रेंज है। ओके, बट मुझे लगता है कि मार्केट इसी लेवल के बीच में काम करना चाहिए। अगर मंडे मार्केट ब्रूटल फॉल नहीं देता है, अगर मंडे मार्केट ब्रूटल फॉल देता है देन 34,100। तो सिंपल है, फंडा सिंपल है। देखो, बाय हमको वेडनेसडे डे एंड पे करना है। ओके, वेडनेसडे डे एंड पे एटलीस्ट आफ्टर 2:30, 2:45, 3 o'clock, बीटीएसटी भी अपन ट्राई कर सकते हैं, सी बीटीएसटी। तो हमें वो लेवल पे उस दिन अपने को ट्राई करना है, क्योंकि थर्सडे अपने को बुल रन मिलेगा मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, तो वेडनेसडे डे एंड में मार्केट यहाँ पे रहे यहाँ पे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली बायर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो हम थर्सडे को एक बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट जाएगा कैसे आइडियली? देखो, अगर मोटा मोटा कल मार्केट लेट से फ्लैट भी ओपन होता है, लेटेस्ट से, या गैप डाउन ओपन हो जाता है, मंडे मार्केट 130 तक यहाँ तक डाउन है, फिर ऊपर जाएगा मार्केट, लेट से यहाँ पे खत्म हो जाता है, ट्यूसडे छुट्टी है, वेडनेसडे को लेट से फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन होता है या हल्का सा ऊपर भी ओपन होता है, तो भी हमारा सेल ऑन राइज है। ठीक है, और थर्सडे से फिर हम लोग बुल रन में आ रहे, फ्राइडे भी बुल रन आ रहे हैं फर्स्ट हाफ, और सेकेंड हाफ में सेल होगा। तो ये जो ओपनिंग होगी, मुझे जो लगता है ये ओपनिंग के ऊपर ही फ्राइडे की क्लोजिंग होनी चाहिए। ओके, और जो कैंडल मैंने आपको दिखाया था स्टाइल पिन बार वाला कैंडल, वो पिन बार कैंडल ग्रीन साइड में बनने की पॉसिबिलिटीज है, इवन इफ मंडे एंड वेडनेसडे वी आर सेल ऑन राइज। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, मैं अगर ऑप्शन सेलर हो, ठीक है, तो वेडनेसडे सेकेंड हाफ के बाद पी सेल करना चालू कर सकते हैं। ओके, आइडियली हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो भी वी कैन डू एन एडजस्टमेंट, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम पी साइड में। ठीक है, तो वेडनेसडे के बाद सी सेल नहीं करेंगे, मंडे और वेडनेसडे हम सी सेल कर सकते हैं, बट थोड़ा हेज हेज सी सेल करना है आपको। ठीक है, हेज सी सेल करना है आपको। तो लेवल्स मैंने ऑलरेडी दे दिया, वीकली लेवल इंपॉर्टेंट ये है 36,500, ये है 35,000। ओके, ये 1,500 पॉइंट का रेंज है, और ज्यादा से ज्यादा 34,100, अनदर 500 पॉइंट, सो 2,000 पॉइंट्स का रेंज है। अगर मंडे मार्केट डू डाई लेवल के नीचे ट्रेड करता है, ओके, इसके ऊपर चला गया तो अलग बात है, फिर हमारी सारी व्यू गलत हो जाएगी, बट इसके नीचे अगर ट्रेड करना चालू करता है, वेडनेसडे भी फॉल करेगा और फिर मार्केट ऊपर रिकवर करेगा। दैट इज द व्यू। if people are thinking कि market will give you a fall of 3,000 point होगा, again that is not going to happen. Okay, I don't think that is going to happen. ठीक है, तो वीकली व्यू बोल दिया, हैमर पिन बार टाइप डोजी ग्रीन कैंडल, मंडे सेल ऑन राइज, वेडनेसडे सेल ऑन राइज, वेडनेसडे डे एंड पे वी कैन टेक सी बीटीएसटी, थर्सडे वी नीड ए बुल रन, Friday first half buy, which is the Thursday का bull run will continue, and second half में we'll see a good sell, but still the color of the candle will be green. Okay, that is why downside is limited. Okay, ठीक है, now let us come to Nifty. Nifty में भी मैं अगर वीकली एनालिसिस करूं, इसकी भी जो कैंडल है मेरे को सिमिलर कैंडल दिख रही है। ओके, सिमिलर कैंडल दिख रही है, और ये जो बॉटम है, आइडियली ये बॉटम तो नहीं क्रॉस करना चाहिए निफ्टी को, 16,200 नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, बट इतना दूर अगर आया है एंड वी आर सीइंग के मंडे एंड वेडनेसडे वी आर सेल ऑन राइज, आई समहाउ थिंक कि निफ्टी को ये जो मंथली ब्रेकआउट इसने दिया, मैंने क्या बोला था आपको कि निफ्टी जब तक मंथली ब्रेकआउट को रिटेस्ट नहीं करेगा, बुल रन कंटिन्यूसली बुल रन देना निफ्टी के लिए मुश्किल है। तो ये जो मंथली ब्रेकआउट हमारा ये 15,900 के आसपास है, मेरा बाई जोन मैंने 16,000 के आसपास दिया है मोटा मोटा। ओके, 16,000 वीकली बाई जोन। तो मार्केट अगर 15,900 पे आपको मिल जाता है और 100 पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है, बट यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स करेगा। क्या मार्केट यहाँ से दोबारा गिर सकता है? गिर सकता है, बट नॉट नेक्स्ट वीक।
तो नेक्स्ट वीक अगर वेडनेसडे तक आपको मार्केट 15,900, 950, 16,000 के लेवल पे अगर मिलता है तो यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड गो फॉर ए बाय अप टू दिस डू डाई लेवल. निफ्टी का जो डू डाई लेवल है वो 16,715 के आसपास है. ओके, तो 16,700 आप ले लो. तो यहाँ से मैं 700 पॉइंट की रिकवरी की बात कर रहा हूँ. इट माइट बी थर्सडे एंड फ्राइडे कंबाइंड. ओके, विल सी दैट. अगर यहाँ तक आता भी नहीं है तो मार्केट यहाँ तक तो मिनिमम आएगा 16,500 तक. तो इट्स 500 पॉइंट की रिकवरी पॉसिबिलिटीज है थर्सडे एंड फ्राइडे combined. Now a lot of people ask in the group whether it is a breakdown or not. I would not consider still it as a breakdown because daily में it has broken down but weekly chart में it has not broken down. Okay, so मेरे लिए ये पैटर्न अभी निफ्टी का ब्रेकडाउन पैटर्न नहीं है. ठीक है, तो I'd still go for a level retesting 15,900 to 16,000 का level retesting and then you can go for a buy from there. ठीक है, एवरीबडी इज क्लियर. वीकली वाला तो डेली का एक व्यू बना देता हूं मैं. पहले डेली में अपन करेंगे कैसे. हाँ, देखो वीकली जो कलर ऑफ द कैंडल और द साइज ऑफ द कैंडल हो तो बैंक निफ्टी जैसा ही होगा मोस्टली. इट माइट बी पॉसिबल कि निफ्टी में द ग्रीन साइड माइट बी लिटिल बिट बिगर. ओके, दैट मींस पिन बार का पिन जो है, दैट पिन का हेड माइट बी लिटिल बिट बिगर. ओके, ठीक है. एनीवे, वीकली व्यू जो है सिंपल है. 16,700 का डू डाई लेवल है. अपर साइड की कैपिंग मेरी 17,000 की है बट मार्केट यहां तक जाएगा नहीं मुझे लगता है. ये मैंने एक सेल जोन बनाया है यहाँ पे, देखो ये वाला which is 16,838. ओके, तो 16,850 ले लो. ज्यादा से ज्यादा 200 पॉइंट और ऊपर जाएगा और ऊपर गया तो नीचे गिरेगा. ठीक है, बट आई डोंट थिंक मार्केट ऐसे करेगा. मुझे जो लग रहा है कि मार्केट कैसे करेगा जो अभी हमने ऑलरेडी बताया. मंडे सेल ऑन राइज, वेडनेसडे सेल ऑन राइज, या तो ये डबल बॉटम या फिर 16,000 ये वाला जो बाई जोन है. यहाँ से मार्केट थर्सडे को रिकवर करेगा. ओके, कितना रिकवर करेगा देखते हैं. और फ्राइडे को ऊपर जाके फिर नीचे गिरेगा ऐसे. ठीक है, दैट वुड बी आवर व्यू. तो ये बहुत लोगों को बाय ऑन डिप्स दिख रहा होगा ये सिनारियो, राइट? करेक्ट. सो डोंट गेट इनटू बाय ऑन डिप्स. ठीक है, बाय हमारा सिर्फ थर्सडे को ही चालू है. मंडे एंड वेडनेसडे आई एम स्टिल सेल ऑन राइज. ओके, ठीक है, दैट एवरीबॉडी हैज टू गेट क्लियर, राइट? यही वीकली लेवल है, 3 ही है और कुछ नहीं है. बहुत बड़ा जोन है अगर देखोगे आप भी तो. इट्स बिग 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 जोन. बट मुझे अगर पर्सनली आप पूछोगे, मेरी जो रेंज है वो रेंज 16,050 से लेके 16,800, 750 पॉइंट्स का रेंज है निफ्टी का. ओके, इस रेंज में निफ्टी खेलना चाहिए. तो एक्सट्रीम ट्रेडिंग अगर हमें करनी है, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो फिर हम सी सेल करना चालू करेंगे. मार्केट अगर इस लेवल के पास आ जाता है बिफोर थर्सडे तो हम पी सेल करना चालू कर सकते हैं. ठीक है, क्या हम स्ट्रैंगल कर सकते हैं? हाँ, जो मैंने रेंज दिया है वो स्ट्रैंगल कर सकते हो. बट बैंक निफ्टी में द रेंज इज वेरी वेरी हाई. इट इज 2,500 पॉइंट का रेंज. निफ्टी में इट इज 800 पॉइंट का रेंज. अगर उसमें आपका कैपिटल है एंड यू कैन कीप इट फॉर 4 days, then you do a strangle. Not worry, don't worry. मार्केट उस रेंज के बाहर जाएगा नहीं. ओके, निफ्टी में भी मार्केट इस रेंज के बाहर जाएगा नहीं. दैट इज द व्यू. एवरीबॉडी इज क्लियर? ठीक है, 5 मिनट में आते हैं मंडे का ट्रेडिंग में बताता हूँ मंडे ट्रेड कैसे करना है. ओके, ठीक है. देखो मंडे ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए. ओके, 16,624 जो क्लोजिंग ऑलमोस्ट क्लोजिंग उसी के आसपास है. मार्केट मैं सिर्फ सिनेरियो बताता हूं, ज्यादा बात नहीं करूंगा. मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके नीचे कट कर देता है, ठीक है, तो टारगेट 1 ये जो डे लो है 16,500, टारगेट 2 16,377. कल का ही बात कर रहा हूं मैं, ओनली टुमारो. ओके, टारगेट 3 16,200. ओके, क्या ये एक दिन में आएगा? आई रियली डाउट, बट यहां तक तो लो 16,386 तक तो लो. ठीक है, 16,386. so 16,500, 16,386. उसके बाद मार्केट शायद ऐसा रिकवर भी कर ले. वेडनेसडे भी सेल ऑन राइज है
बट मंडे 130 के बाद ये इसी लो एरिया रेंज में कहीं पे रुक जाएगा। तो हमारी टारगेट जो होनी चाहिए वो 16,380 के आसपास, 400 ले लो। सो 250 पॉइंट का फॉल इज ऑल्सो नॉट बैड। ओके, ये सिनारियो अगर होता है, सिनारियो 1। सिनारियो 2 जहां पे हम लोग बहुत कंफ्यूजन होंगे, मार्केट अगर गैप अप कर दिया, ठीक है, मार्केट अगर गैप अप कर दिया, या तो मार्केट डू डाई लेवल के नीचे ट्रेड करे विद इन हाफ एन आवर, तो आप सेल ले सकते हो। बट उस केस में इसका गारंटी में नहीं दे सकता, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश करेगा इन बिटवीन दिस टू जोन्स, जहां पे इतने कंसोलिडेट बहुत बार किया है। ठीक है, तो ये टारगेट ले लेना 16,628, 737 टू 628। 628 के बाद डेफिनेटली मार्केट बाय करेगा। इस बाय को आप स्कैल्पिंग के हिसाब से लो, ऊपर भी जा सकता है, यहां तक भी आ सकता है, कैन नॉट गारंटी। बट बाई चांस ये अगर स्विंग लो इसने कट किया, तो 628 से 500, ये 100 पॉइंट का सेल आपको भूलना नहीं है। ओके, यहाँ पे स्कैल्पिंग है ये जोन में, ये जोन में सेल है। ओके, ये सेल जोन का टारगेट लेना है, स्कैल्पिंग में टारगेट नहीं लेना है, स्कैल्पिंग में ट्रेलिंग करना है, स्टॉप लॉस। और फिर मार्केट अगर ये जो येलो लेवल है हमारा 16,627 का, इस लेवल को अगर कट कर देता है, तो 506 का हमें टारगेट लेना है, 125 पॉइंट्स का। ये दिख रहा होगा आपको छोटा, बट इसमें ट्रेड आपको बहुत मस्त मिलेगा। यहां तक गारंटी है, बाकी नीचे बह गया तो बोनस है आपका। ठीक है, इसके नीचे अगर बह गया तो ये टारगेट आएगा, 500 के नीचे बह तो अनदर 100 पॉइंट्स का टारगेट आएगा। ओके, बट एवरी डाउन साइड शुड हैपन बिफोर 130 145 मैक्स। उसके बाद मार्केट इतना रेंज बाउंड करेगा कि आपके सिर्फ स्टॉप लॉसेस ही हिट होंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से ट्रेड करना है। दिस इज सेकंड सिनारियो। थर्ड सिनारियो सबको पता है, बाई चांस अगर हुआ और हमारा एस्ट्रो टाइमिंग वगैरह सब गड़बड़ हो गया, मार्केट सीधा इसके ऊपर ओपन करता है 16,800 के ऊपर, सेल जोन का सपोर्ट बाय, उस केस में ये टारगेट आ सकती है। देन हमारा एस्ट्रो के एनालिसिस ही पूरा खराब है, कोई होगा नहीं। बट हमें ये वाला सिनेरियो मिस नहीं करना है। ये पैटर्न ने हमको पहले भी बहुत पैसा दिया है, प्राइस एक्शन का पैटर्न, बट मुझे नहीं लगता ये सिनेरियो होगा। ठीक है, दीज आर द टू ट्रेड्स, सॉरी दीज आर द थ्री सिनेरियो ट्रेड्स, दीज आर एक्सट्रीमली टू इंपॉर्टेंट लेवल्स। ओके, ऊपर साइड से अगर आ रहे तो यही लेवल्स में आपको टारगेट लेते जाना है। ओनली सिनेरियो जहां पे टारगेट नहीं लेना है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है 16,628 पे, इमीडिएटली आपको सेल कट करना है, क्योंकि ये 100% यहाँ से बाइंग देगा। कितना बाइंग देगा आई डोंट नो, फिर कट के दोबारा सेल लेना है। तो ये कॉम्प्लेक्स सिनारियो है, इसमें ये पिवट लेवल है हमारा एक्चुअली, तो ये कॉम्प्लेक्स सिनारियो है, इसको देख के ट्रेड करना है। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैं बता देता हूँ, बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है। लेवल्स तो है हमारे पास, वी ऑलरेडी हैव लेवल्स ड्रॉन। ठीक है, ओके, हाँ ये लेवल की मैं बात कर रहा था ना, ये लेवल आपको कहीं पे यहाँ पे मिलेगा एक्चुअली, ये जो बाई जोन है। चलो ये ड्रैग नहीं हो रहा है, बट दैट्स ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, इसका देखो सिनारियोस, ये डे हाई पे ही सेल ले सकते हो, ये गैप फिल करेगा बोल के रुकने का नहीं, गैप फिल कर दिया तो कर दिया, बट इसी डे हाई पे आप दोबारा बैंक निफ्टी में सेल ले सकते हैं, अगर मार्केट सीधा ओपन भी हो गया। क्योंकि मुझे फर्स्ट 10 मिनट्स ही मार्केट अपसाइड लग रहा है, ग्रीन कैंडल, उसके बाद फॉल ही है, टाइमिंग मैंने ऑलरेडी दे दिया है, राइट। तो यहाँ पे फॉल ले लो, यहाँ पे भी वही है, मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये लेवल थोड़ा रेजिस्ट करेगा 36,300 का। बट ये ऐसे जाके अगर अपना डू डाई लेवल को टच करके नीचे आ रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, फिर सेल कर दो दोबारा। टारगेट 1 35,900, टारगेट 2 35,500, ये टारगेट आ जाना चाहिए कल, अगर ये सिनारियो में आ रहा है। ठीक है, सेकेंड सिनारियो जो है हमारा सिंपल है, अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होकर मार्केट कभी भी गैप डाउन में मार्केट ये लेवल क्रॉस करता है, कभी भी, मॉर्निंग में हो, आफ्टर हाफ एन आवर हो, आफ्टर 1 आवर हो, डजेंट मैटर, द मोमेंट इट कट्स 35,900, आपको टारगेट 400 पॉइंट की लेनी है, ये 400 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, बहुत इजीली आपको मिलेगा। उसके बाद रेस्ट इज बोनस। ओके, आने को तो ये यहाँ को भी आ सकता है, बट रेस्ट इज बोनस, बट हम टारगेट यहाँ तक लेंगे। बाइंग कल कुछ नहीं है, बाइंग बेसिकली आफ्टर 130 आप कर सकते हो, वो भी स्कैल्पिंग, बट आई विल नॉट डू बाइंग। अगर आपने सेल ने पैसे कमा लिया अप टू 130 पे, तो
डब्बा बंद कर देना, ठीक है, क्योंकि हाई चांसेस कि मार्केट वेडनेसडे को जो है वो गैप अप करे और फिर सेल ऑन राइज दे। ओके, पॉसिबल है, अनलेस ग्लोबल मार्केट में वो रशिया यूक्रेन का दोबारा वार वाला न्यूज आ जाए, इट कैन गैप अप एंड स्टिल गिव सेल ऑन राइज। एंड वेन थर्सडे का तो हमारा बुल रन ही है। दैट इज व्हाई दिस वीक आई एम सेइंग देयर इज नो बिग डाउन साइड, नॉट बिग। whatever will happen is ideally happen on Monday Wednesday combined, okay, but Wednesday मेरे को रेंज बाउंड दिख रहा है, तो जो होगा मंडे ही होगा आइडियली, ठीक है। उसके हिसाब से ट्रेड करना। जैकपॉट हर हफ्ते नहीं मिलेंगे, ये हफ्ते हमको मिला था, बट आई रियली डाउट कि बंदों ने लिया होगा ये जैकपॉट, स्पेशली थर्सडे का ये फॉल, ठीक है। हमने तो नहीं लिया, हमने तो बाइंग में पैसे कमाए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बाइंग में पैसे कमाए थर्सडे। फ्राइडे को तो क्लियर बुल रन था, एक्चुअली फ्राइडे ज्यादा पैसे बने थर्सडे से, ठीक है, बट ठीक है, वो किस्मत होती है। प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, देखो दुनिया कितना भी पैसे कमाए, कोई कितना अपना बैंक अकाउंट पीएनएल दिखाए, डजंट मैटर। आपको पता होना चाहिए आपके ट्रेड्स कितने कॉन्फिडेंट हैं, कहाँ पे आपको कंफर्ट लेवल है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। सिंपल, जैसे मैंने फ्राइडे में मॉर्निंग में बाय किया, यहीं पे काट दिया। क्या मार्केट इसके ऊपर जा सकता था? जा सकता था भाई, ये हाई के ऊपर गया, ये हाई के ऊपर गया गया तो और यहाँ तक आ सकता था, बट मुझे लगा कि नहीं जाएगा, सो वॉट एवर कैलकुलेशन है यहाँ, तो मैंने बोला यहीं पे कट कर देते हैं, ठीक है, आई कट इट हियर। तो मार्केट का सारा मूव आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, जितना कैप्चर कर रहे हो। आई एम ए बिग बिलीवर ऑफ डेली मेकिंग इंट्राडे प्रॉफिट rather than doing one jackpot one day and other days loss, right? So that is how I trade intraday especially. तो हमारी जो ट्रेडिंग होती है वो लेवल की बेसिस पे होती है, ठीक है, लेवल के बेसिस पे ट्रेड करेंगे, सिनेरियो के बेसिस पे ट्रेड करेंगे, छोटे टारगेट ही लेंगे। बड़ा टारगेट मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, स्पेशली ऑप्शन बायर। बाकी सेलर के लिए पोजीशंस तो है मेड इट क्लियर, अगर 2000 पर 2500 2500 पॉइंट का रेंज इफ यू कैन डू स्ट्रैंगल देन डू द स्ट्रैंगल। ओके, स्ट्रैडल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि स्ट्रैडल में क्या प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि मंडे और वेडनेसडे दोनों साइड कंबाइंड फॉल हो गया और बाई चांस बड़ा फॉल हो गया, बिकॉज द वेलोसिटी यू डोंट नो एट व्हाट वेलोसिटी द मार्केट विल फॉल, राइट। इस तरह की अगर वेलोसिटी आ गई तब तो आप घबरा जाओगे, नहीं संभाल पाओगे, ठीक है। तो स्ट्रैडल थोड़ा दूर रहना, स्ट्रैंगल अगर कर सकते हो कम पैसा मिलेगा बट कर सकते हो, अदरवाइज नेकेड कर सकते हो थर्सडे को पी सेलिंग, ओके। तब तक नेकेड सी सेलिंग कर सकते हो, बट रिस्की वाले, ओनली रिस्की। बाकी लोगों को मैंने ओनली हेज्ड सी सेलिंग बोला है, ओके। दैट मीन्स आप लोगों सबको वीडियो देख के पता चल रहा होगा जो मैं इतनी बात बोल रहा हूँ, अगर किसी को भी कंफ्यूज हो रहा है, मैंने जब चार्ट बना था तब भी मैंने बोला लोगों को शायद बाय ऑन डिप्स वाला फंडा दिख रहा होगा। नो, इट्स नॉट बाय ऑन डिप्स, इट्स स्टिल ऑन राइज, ओनली थर्सडे इज बुल रन, ठीक है। वो थोड़ा दिमाग में रजिस्टर करना है, ठीक है, और ज्यादा बात नहीं बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी, कल लाइव में देखते हैं।